Very good morning, dear students. Today topic is conjunction. So today we will study about coordinating conjunction. Conjunction, as you all know, conjunction it means joining words. And as I told you in previous class, conjunction has three types. Okay, first coordinating conjunction, second subordinating conjunction, and third is correlative conjunction. So today we will study about coordinating conjunction. So what is coordinating conjunction? Let's see here. Coordinating conjunction connect words, ideas or part of a sentence that have a equal status in a sentence. It means coordinating conjunction connect करता है words को, ideas को और part of a sentence जो equal status रखते हैं एक sentence में. Okay. Now coordinating conjunction it joins two verbs and two nouns, two adjective and two adverbs. Coordinating conjunction जो है वो दो verb को और दो noun एंड दो एडजेक्टिव और दो एडवर्ब्स को ज्वाइन करने का काम करता है. लेट्स सी हियर वर्ब्स इट मीन्स एक्शन वर्ब. ओके, let's see here the children ran and jumped all over the playground. Okay, so in this sentence there are two verbs. It means दो action हो रहे हैं इस sentence में. First is run and second is jump. It means run का भी action हो रहा है और एक jumping का भी action हो रहा है. So in this sentence run and jump both are verbs. Okay, and word and this is a coordinating conjunction because this word is joining both action words run and jump. That's why and is a coordinating conjunction. Now two nouns. Coordinating conjunction it joins two nouns also. Let's see here. Would you like sandwich or eggs for breakfast? Okay, as you all know nouns it means it tells about the person, place, animals and things. Okay, so in this sentence there are two nouns, sandwich and eggs. Okay, sandwich it is also noun and eggs this is also noun. Okay, so sandwich and eggs both are noun and word or it's a coordinating conjunction because this word is joining sandwich and eggs. Both are noun और ये जो word है और this is coordinating conjunction क्योंकि ये noun और दोनों noun जो हैं इस sentence में उनको join करने का काम कर रहा है. That's why it's a coordinating conjunction. Now next, two adjective. It means coordinating conjunction it joins two adjective also. Adjectives you all know जो noun को modify करता है या जो noun के बारे में बताते हैं. ठीक है, noun की quality के बारे में जो बताता है that is called adjective. Okay, let's see here. The old castle seemed grand and mysterious. So in this sentence जो noun है वो क्या है? old castle. This is a noun. ओके, सो नाउन की क्वालिटी को कौन बता रहा है? क्या है इनकी क्वालिटी? ग्रैंड एंड मिस्टीरियस. सो बोथ आर एग्जेक्टिव. ये क्या है? हमारे एग्जेक्टिव है. एंड वर्ड यट, दिस वर्ड इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्योंकि ये इन दोनों ही एग्जेक्टिव को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. द ओल्ड कैसल सीम ग्रैंड yet mysterious. Okay, so in sentence में जो grand और mysterious है, grand यानी बड़ा, mysterious यानी जो खुफिया जो होता है ना, that is called mysterious, जिसे कहते हैं हम रहस्य जिसमें हो, है ना. तो इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों एग्जेक्टिव को जिस वर्ड से ज्वाइन किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इट मीन्स जो यट है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ओके, नेक्स्ट टू एडवर्ब्स. जो coordinating conjunction है it join two adverbs also. adverbs you all know जो वर्ब की क्वालिटी को बताता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. जो वर्ब की क्वालिटी को बताए वो एडवर्ब होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लोली बट श्योरली द रैबिट फिनिश द रेस. आपको पता है जैसे ही वॉकड स्लोली, तो वॉक क्या है? एक वर्ब है, एक एक्शन है. और स्लोली इट मीन्स हाउ ही वॉकड, मतलब वो कैसे वॉक की उसने. सो स्लोली इज अ एडवर्ब. ओके, सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो स्लोली बट श्योरली द रैबिट फिनिश द रेस. जो रैबिट है उसने स्लोली धीरे धीरे बट श्योरली फिनिश द रेस. सो स्लोली एंड श्योरली बोथ आर एडवर्ब्स and
This is adverb and this is also adverb and word, but this is a coordinating conjunction because this word is joining both adverbs slowly and surely. That's why it is a coordinating conjunction. Okay, next, coordinating conjunction it join main clauses. टू मेन clauses जो होते हैं उनको join करने का काम भी करता है कौन? coordinating conjunction. अब जो मेन clauses हैं वो दोनों ही independent हो और उनको जिस word से हम join करते हैं that is called coordinating conjunction. Let's see the example. I love smoking. I know it is not good for me. And next clause, my doctor has told me this and I don't want to listen. ये सब क्या है? ये clauses हैं, ये मेन क्लॉजेस है, लेकिन इन क्लॉजेस को जिस वर्ड से हम कनेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई भी क्लॉज किसी पे डिपेंड नहीं है. जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जिस वर्ड से हम ज्वाइन करेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा. ओके, लेट्स सी हियर. आई लव स्मोकिंग. आई नो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज. सो यहाँ पर आई लव स्मोकिंग yet I know it is not good. Okay, so in this sentence I love smoking and that I have joining this word with the help of the yet. Okay, this is a coordinating conjunction. I know it is not good for me. My doctor has told me this but do not want to listen. मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा लेकिन मैंने उस बात को नहीं सुना. So in this sentence ये जो एक मैंने with the help of the both coordinating conjunction I joined these clauses. ये जितने भी clauses हैं उनको मैंने yet और but से मैंने उनको join कर दिया. And all clauses are independent. कोई भी clause एक दूसरे से depend नहीं है लेकिन coordinating conjunction से इनको मैंने connect किया है. Okay, so I hope student you have understood how we will join coordinating conjunction. coordinating conjunction verbs को join करता है, ठीक है, एंड नाउन जो है उनको भी ज्वाइन करता है, एंड टू एग्जेक्टिव उनको भी ज्वाइन करने का काम करता है, एंड टू जो एडवर्ब्स है उनको भी ज्वाइन. मतलब एक सेंटेंस में चाहे दो वर्ब है, चाहे नाउन है, दो एग्जेक्टिव है, चाहे टू एडवर्ब है या टू मेन क्लॉजेज हैं, उनको जो ज्वाइन करते हैं वही क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. यहाँ पर जो एंड है, एंड मीन्स और, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. यहाँ पर और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड हेयर yet coordinating conjunction, and here but is coordinating conjunction. Okay, so these are coordinating. Now students, we will understand all coordinating conjunction one by one. First is for, and second is and third is nor, and fourth is but, and fifth is or, and sixth is yet, and seventh is so. So we will learn all coordinating conjunction one by one, and as I told you, the good trick फैन बॉयज़ जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उससे भी हम इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं. फोर का एफ, एंड का ए, एंड नॉर का एन, एंड बट का बी, एंड और का ओ, एंड यट का वाई, एंड सो का एस. ओके, इट मीन्स इट बिकम fan boys. So this is a very good trick, so you can remember all coordinating conjunction. Okay, now one by one I will explain. For we use for one statement or fake input from another. It means we use for reason. किसी चीज़ का reason बताने के लिए हम for का use करते हैं. With the help of the example we will understand. She will rise in life, for she is sincere and hardworking. So here for is a coordinating conjunction. Okay, because here we are telling the reason. Next, let me take leave of you for I am getting late. So for this is also a coordinating conjunction. Okay, so for is coordinating conjunction here,
and here also for is coordinating conjunction because in both sentences we are telling the reason. Okay, so किसी चीज का reason बताने के लिए, इस एक reason मीन्स कारण बताने के लिए हम for का use करते हैं. Next and we use for adding one statement or fact to another. It means कारण और या फिर एडिशन, उसके साथ में कोई चीज बताने के लिए हम एंड का यूज करते हैं. एंड का मतलब क्या होता है, और या फिर के साथ. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. द वेदर वाज फाइन एंड द सी वाज काम. जो वेदर है वो कैसा था, फाइन, एंड द सी वाज काम, और जो सी था वो कैसा था, काम. इट मीन्स शांत था. इट मीन्स यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं एडिशन, कि जो वेदर है वो फाइन था और जो सी था वो क्या था, काम था. सो कंजक्शन एंड इट्स टेलिंग द एडिशन. ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन बताने के लिए हमने कंजक्शन एंड का यूज किया. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, द डोर वॉज ओपन एंड माई थिंग्स वर लाइंग स्कैटर्ड. जो दरवाजा था वो खुला हुआ था और जो मेरी सारी चीज़ें थी वो स्कैटर्ड, इट मीन्स फैल गई. ओके, सो हेयर एंड इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इन दिस सेंटेंस इट इज टेलिंग द एडिशन. इट मीन्स दरवाजा खुला हुआ था और सारी चीज़ें स्कैटर्ड हो गई. तो एंड का यूज़ हम करते हैं, और हिंदी में हम उसका मीनिंग होता है एंड का और या एडिशन के साथ में. ओके, नेक्स्ट नोर. नोर वी यूज फॉर एडिशनल नेगेटिव आइडियाज. ओके, नेगेटिव आइडियाज जो होते हैं उनको बताने के लिए हम नॉर का यूज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ही इज नेवर टायर्ड नॉर इज ही एवर सिक. ओके, नॉर ही इज नेवर टायर्ड, वो कभी भी नहीं थकता है और ना ही वो कभी बीमार पड़ता है. इट मीन्स ना तो वो कभी थकता है ना ही वो कभी बीमार पड़ता है. सो फॉर नेगेटिव आइडियाज वी विल यूज कंजक्शन नॉर. इन सेकेंड एग्जाम्पल, शी डज नॉट ईट मीट नॉर डज नॉट ईट डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, सो इन दिस सेंटेंस शी डज नॉट ईट मीट, ना तो वो मीट खाती है और ना ही वो डेयरी प्रोडक्ट्स खाती है. सो इन दिस सेंटेंस नोर इट्स टेलिंग द नेगेटिव आइडियाज. ओके, सो नोर इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट बट एक्सप्रेसिंग अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट के बीच में जो कंट्रास्ट को बताता है तो हम बट का यूज करते हैं. इट मीन्स हम कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए, अपोजिट चीज़ों को बताने के लिए या अपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. द ट्रेन वाज फुली पैक्ड. जो ट्रेन थी वो कैसी थी, फुली पैक्ड, बट वी गॉट कंफर्टेबल सीट्स. लेकिन हमें कंफर्टेबली सीट्स मिल गई थी. इट मीन्स यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ट्रेन कैसी थी, फुल पैक्ड थी, लेकिन फिर भी हमें क्या मिल गई, सीट्स मिल गई. इट मीन्स जो बट है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यहाँ पर बट कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है. ओके, next example. The earthquake was quite severe but the temple was not damaged. जो earthquake था, जो भूकंप था, वो बहुत ज़्यादा ही सीवियर था और but the temple was not damaged. लेकिन जो temple था वो डैमेज नहीं हुआ. मतलब भूकंप तेज तो था लेकिन फिर भी जो temple था वो डैमेज नहीं हुआ. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट को बताया जा रहा है. ओके, सो फॉर कॉन्ट्रास्ट वी विल यूज बट coordinating conjunction. Okay, next or we use for expressing a choice between two alternatives. Okay, अगर और का हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, दो चॉइसेस को बताता है, दो ऑल्टरनेटिव्स को बताया जाता है, वहाँ पर दो ऑप्शंस को बताया जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल. यू मस्ट अपोलोजाइज और यू विल बी डिसमिस्ड. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर चॉइस है, ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो तुम माफ़ी मांग लो या फिर तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर जो और है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज फॉर चॉइस. ओके, फॉर ऑप्शन, किसी को ऑप्शन देना है, चॉइस बताना है, सो फॉर दैट वी विल यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और. नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू मस्ट बी बोल्ड और यू विल नॉट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड. Okay, so in this sentence we are using or coordinating conjunction for telling the choice. Okay, so for choices, for option we will use or coordinating conjunction. This is also coordinating conjunction. Next, yet.
यट ऑल्सो वी यूज़ फॉर कॉन्ट्रास्ट, बट का यूज़ भी हम कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं, और जो यट है इसका यूज़ भी हम कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. द सन वॉज शाइनिंग यट इट वॉज कोल्ड आउटसाइड. यट का मीनिंग हिंदी में क्या निकलता है? फिर भी. ओके, सो द सन वॉज शाइनिंग, जो सन है वो शाइनिंग कर रहा था, यट फिर भी इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या थी? कोल्ड थी. ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, शी वॉज अ स्ट्रिक्ट यट फेवर टीचर. वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, फिर भी क्या है? वो फेयर टीचर है. ओके, सो इन बोथ सेंटेंसेस वी हैव यूज यट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये दोनों क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. और यट का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो क्या होता है? फिर भी. ओके, सो वी यूज यट फॉर कॉन्ट्रास्ट. ओके, नेक्स्ट, so we use for consequence and result. With the help of the example we will understand. My car broke down, so I had to take the train. So मेरी जो कार है वो टूट गई, so इसलिए I had to take the train, इसलिए मैंने जो है वो ट्रेन ली, मतलब मुझे ट्रेन लेनी पड़ी या ट्रेन ले ली मैंने, है ना. तो यहाँ पर क्या है? एक कॉन्सिक्वेंस, एक रिजल्ट है. सो वी यूज फॉर कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट, कि भाई ऐसा हो गया, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए. सो इन हिंदी वी कैन से इसलिए. सो का जो मीनिंग होता है वो इसलिए होता है. ओके, मेरा ये ऐसा हो गया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़े. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द रोड वॉज ब्लॉक्ड, सो वी हैड टू टेक अ डिटॉर. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रोड है वो ब्लॉक था, इसलिए हमें दूसरा टॉर, इट मीन्स वे, दूसरा या फिर सर्कल. भाई रास्ता ब्लॉक था इसलिए हमें वहाँ से सर्कल लेके घूमना पड़ा. ओके, सो इन बोथ सेंटेंसेस वी हैव यूज सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सो वी यूज फॉर कॉन्सिक्वेंस एंड रिजल्ट. किसी चीज़ का परिणाम कि ऐसा हुआ, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, तो फॉर consequence and result we will use so students, for we use for reason, and we use for addition, and nor with we use for negative ideas, and but we use for contrast, and or we use for choice, and yet we use for contrast, and so we use for consequence and result. And with the help of the fan voice word we can remember all coordinating conjunction. So I hope you all have understood about all coordinating conjunction, and that's all for today, and have a nice